بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج 17 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن رب کریم کا یہ نام 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 17 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن رب کریم کا یہ نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والو، غیبی مدد جب کسی کے ساتھ آ جاتی ہے، جب رب کسی سے راضی ہو جاتا ہے، تو پھر غیبی فرشتے، اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا کوئی ولی آ کے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں رب کریم کا یہ نام پڑھنے والا، رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بدبخت، لاچار، مجبور، بے بس آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے مانگتا ہے، تو رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ فرماؤں۔ اگر کوئی آپ کی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو 17 رمضان جمعہ رات کے دن رب کریم کا یہ ایک نام پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، رمضان مبارک کے مہینے میں جب کوئی بندہ بھیکاری بن کر، فقیر بن کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کرتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اور آج یہ وظیفہ آپ کے مقدر کو، ستارے کو چمکا کے رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی اور آخرت میں کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ 17 رمضان مبارک جمعہ رات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے، اس کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم رب کو راضی کریں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد اپنی حاجات کو پورا کریں، رب کریم سے ضد کر کے اپنی خواہشات کو پورا کریں، رب کریم سے لاڈ کر کے مانگیں۔ آج ایک بچہ اپنی ماں سے لاڈ کر کے مانگے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کے بچے کی خواہش کو، ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اور جو کوئی بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھتا ہے، لاڈ کر کے مانگتا ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی ہر طرح کی مشکل پریشانی سے مکمل نجات چاہتا ہے، تو رمضان کے 17 تاریخ جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ 5 انگلیوں پہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں روزے دار کا ثواب اتنا ہے کہ رب کریم نے ہر نیکی کا اجر و ثواب بتا دیا، ہر نیکی کا اجر معلوم ہے کہ کس نیکی پر کتنا اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، روزے دار کا ثواب کتنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے کہ رب کریم جس کو جتنا چاہے گا اتنا ثواب سے نوازے گا۔ اللہ والو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے، یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو یقین کریں مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ آج اس مہینے میں بزرگوں کا بتایا ہوا، اکابرین کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے، تو اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے 1 منٹ نکال کے رمضان کی 17 تاریخ جمعہ رات کے دن کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے،
तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि रमजान का महीना मौका दे रहा है रब करीम से मांगने का, खजाने लूटने का, हाजात को पूरी कराने का, नस्लों को बात कराने का मौका दे रहा है। कोई रब करीम से मांगने वाला जो अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, जिंदगी भर के मकसद में कामयाबी के लिए 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का सिर्फ ये एक नाम 5 उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ने वाला, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, या फिर आप लोग नेपाल से हैं, या फिर आप लोग बांग्लादेश से हैं, अमान से हैं, जापान से हैं, मस्कत से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 17 रमजान जुम्मे रात का दिन आ जाए तो आपने इस रब करीम के सिर्फ एक नाम को लाजमी पढ़ना है। रब करीम ने इस नाम की कसम खाई। रब फरमाता है, मुझे कसम है इस नाम की, जो बंदा रमजान के महीने में रोजे की हालत में 17 रमजान जुम्मे रात के दिन इस नाम को पढ़ के जो भी मांगेगा, मैं रब कसम खाता हूं मैं इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। आज ना आप कसम खा रहे हैं, ना मैं खा रहा हूं, आज वो रब खा रहा है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जिसकी मर्जी के बगैर किसी को भी रिस्क मिल नहीं सकता। वही राज़िक है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही अल्लाह कदीर है। वो रब कसम खा रहा है, कसम इस नाम की, जो बंदा इस नाम को पढ़ के रब करीम से जो भी मांगेगा, मेरा रब बंदे की हर हाजत को पूरा करेगा। अब आप रब करीम के कामलात को देखना चाहते हैं तो आज 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, फकीर भी पढ़े तो बादशाह हो जाएगा। जिस घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, खाने को कुछ नहीं, फाके परेशानियां हैं, और गुर्बत ने ऐसे डेरे डाल रखे हैं कि एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो वहां पर उस घर में अपने हाथ की 5 उंगलियों पर रब करीम का ये नाम पढ़ने से इंशाअल्लाह रब की जात ऐसे मोजज़ात दिखाएगी कि गायब से कोई फरिश्ता, अल्लाह का वली, कोई नेक बंदा आकर आपकी मदद कर जाएगा, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जब रब की जात देने पर आती है ना मेरे भाइयों, न शक्लें देखती है, न अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। आज 17 रमजान मुबारक है, जुम्मे रात का दिन है। रब करीम का सिर्फ ये एक नाम पढ़ के देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रब को मनाना, रब से अपनी हर बात मनवाना कितना आसान है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता मेरे भाइयों, आज बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से रब करीम का ये नाम पढ़ने का भी तरीका बताऊंगा। रब करीम को कैसे मनाना है, रब से अपनी हर बात को कैसे मनवाना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ देखना यह है कि कौन खुशकिस्मत ये वजीफा पड़ेगा। अगर आज लापरवाही की 17 रमजान जुम्मे रात के दिन का ये खास वजीफा, छोटा सा अमल छोड़ दिया, फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। अगर 1 मिनट के वजीफे से जिंदगी आसान हो जाए, रुकावटें बंदिशों से जान छूट जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं मेरे भाइयों। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन फौरी तौर पर बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले 17 रमजान जुम्मे रात के दिन की खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज हम सब पे नजर करम फरमा दे, आज बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा दे, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा दे। आज जो तंग दस्त हैं, बेकारी हैं, फकीर है, मौला तेरी एक कुन के मोहताज है, तू कुन फरमाएगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आज अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब पे रहमतों बरकतों के मामले फरमा दे। मेरे मौला हमें माला माल फरमा दे, जो मांगा मुकद्दर फरमा दे, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। मेरे मौला फलस्तीन के मुसलमानों की तू गैब से मदद फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों को अरूज और गलबा नसीब फरमा। मेरे मौला जो कत्ल गारत हो रहा है, मेरे मौला तू सब जानता है, तू सब देख रहा है। मेरे मौला सिर्फ तेरी एक कुन के मोहताज है। मेरे मौला आज उम्मती मुहम्मदी की हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अब फौरी तौर पर एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत सी मेरी माएँ बहनें बुजुर्ग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रही हों, लेकिन
اب वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है, लेकिन आपकी गलती कोताही से वीडियो स्किप करके देखने से अगर कोई खास और अहम बात मिस हो गई तो सारा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए आज आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, आज कोताही मत कीजिएगा, वरना पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। अब आपने फौरी तौर पर एक बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ फौरी तौर पर एक बार आप लोगों ने अपने मकसद की नीयत करनी है। आपका जो भी जायज मकसद हो, जो भी आपकी नेक हाजत हो, आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, नई गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आज आप लोग अपने मकसद की नीयत लाजमी करके बैठना, क्योंकि आज आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल के रहेगा। बुजुर्गों के बताए हुए तरीके से सिर्फ आप लोगों ने 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का सिर्फ ये एक नाम पढ़ना है। मेरे बताने में समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरे भाइयों आपके पढ़ने में 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। सिर्फ 1 या 2 मिनट का वजीफा है। अपने तमाम मकसद को जहन में रख के हो सके तो लिस्ट बना के बैठ जाओ, क्योंकि आज ये नाम पढ़ते ही जो मांगोगे, जैसे मांगोगे, जितना मांगोगे आपको मिलता चला जाएगा। और यकीन करें आपने अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है। बस नीयत करके आप लोग इस वजीफे का आगाज कर दें। आप लोग अपने खास मकसद की नीयत करें और फौरन से पढ़ें एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब करीम की बारगाह में मौजूद हैं। आप आंखों को बंद करें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरानी आयत का वजीफा है। ये ऐसी आयत है, इससे नबवी आयत भी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस आयत को तब पढ़ा जब आपको आग में डाला जा रहा था, जब आपको भड़कती हुई आग में डाला जा रहा था। उस वक्त जो आप पे परेशानी बनी थी, आपने इस परेशानी में इन आयत को पढ़ा, तो लिहाजा आपकी जिंदगी का कोई भी कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो नबियों की परेशानियों के बराबर नहीं हो सकती। तो फिर आप लोगों ने इस आयत को पढ़ना है। रमजान मुबारक के महीने में 17वां रोजा जुम्मे रात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये एक ऐसी कुरानी आयत है कि जब कोई बंदा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू करता है, इस बात का इकरार करता है कि रब काबा बेहतरीन कारसाज है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब इन बातों का इकरार करता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही ये रमजान के 17वें रोजे का खास अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही आपके इर्द गिर्द फरिश्तों को यकीन करें मुकर्रर कर दिए जाएंगे। फरिश्ते हसार बना लेंगे जो आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 17 रमजान मुबारक जुमे रात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान आपने तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रख के ये वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 बार यानी 7 टाइम। 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों 7 जमीनों का रिज्क दौलत आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का ये एक नाम हाथ की 5 उंगलियों पे बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आपको मिल जाएगा। शर्त यह है कि बुजुर्गों का बताया हुआ तरीका है, इसमें किसी भी किस्म की गलती कोताही की गुंजाइश, किसी भी किस्म की कोई बच्चों की मुदाखलत नहीं करनी। मैंने हर चीज आपको बच्चों की तरह एक एक नुक्ता, एक एक बात समझा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी भी तरीके से गलती ना हो सके। आपने पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 7 बार पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। और जो बंदा तवज्जो से पढ़ेगा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान, अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लर्ज जाए और आपको यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर के गया है,
तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है, समझ लीजिए कि आपके बिगड़े काम संवर गए हैं, समझ लीजिए कि आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठा है, समझ लीजिए कि आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो गया है, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात झोलिए भर भर के नवाजेगी। आपने 7 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जिस नाम की रब करीम ने कसम खा रखी है। रब करीम ने कसम खाई इस नाम की कि इस नाम को पढ़ने वाला मुझसे जो भी मांगेगा फरिश्ते इसकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। आज 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन जिस नाम की रब ने कसम इरशाद फरमाई उस नाम का वजीफा हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। एक एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा कि जो बंदा बुजुर्गों के बताए हुए इस अमल इस तरतीब से पढ़ेगा इंशाल्लाह कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब करीम का नाम है, या फताहू का वजीफा है। और या फताहू रब करीम का वो नाम है जिस नाम की रब करीम ने कसम खाई। जब कोई बंदा 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन रब करीम का ये एक नाम या फताहू पढ़ता है तो जो वो मांगता है मिल जाता है। नया घर मांगता है, घर मिल जाता है। कर्ज से निजात के लिए, मनपसंद नौकरी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, हर मुश्किल परेशानी से निजात के लिए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। अब आपने या फताहू को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक उंगली पर आपके 3 निशान होते हैं, दूसरी उंगली पर 3 निशान होते हैं, तीसरी उंगली पर भी 3 निशान होते हैं, फिर छोटी इसी तरह से 5वीं उंगली पर भी 3-3 निशान होते हैं। कुल मिलाकर 15 बार आपने या फताहू को पढ़ना है। यानी 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन का ये खास अमल है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उसी को अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाएगा जिससे रब करीम ने रिज़्क और दौलत से नवाजना है, जिसका रब ने मुकद्दर का सितारा चमकाना है। आज 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन का ये खास अमल, ये खास वजीफा करने की तौफीक होगी। आपने या फताहू 15 बार हाथ की उंगलियों पर बताए गए तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बता चुका हूं। या फताहू 1 बार हो गया, या फताहू 2 बार हो गया, या फताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फताहू को हाथ की उंगलियों पे पढ़ना है। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, यानी 15 टाइम। और 5 उंगलियों पर आपने 15 बार पढ़ना है। या फताहू को पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि ये वो नाम है जिसकी कसम रब ने खाई। रब कसम खाता है इस नाम की कि या फताहू की कसम है इस बंदे की हर हाजत पूरी करूंगा। तो या फताहू को पढ़ना है। और जब रमजान के महीने में जिसका हर लम्हा कबूलियत का है, जो रहमत वाला अशरा गुजर चुका है और रहमत वाला ये महीना भी है लेकिन बख्शिश का अशरा मौजूद है, तो आपने इस महीने में रब करीम की जात पे भरोसा करते हुए आपने या फताहू के इस अमल को पढ़ना है। और इसके तफैल, इस कसम के सदके जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, आपने अल्लाह पाक से मांगना है। इंशाल्लाह मांग मांग के थक जाएंगे, वो रब अता कर कर के नहीं थकेगा, क्योंकि उसकी शान है देना, उसका मकसद है देना। और इसने ये मौका फराम किया है हम लोगों को, ये महीना, पाक महीना, रमजान का महीना अता किया कि इस महीने में तुम इबादत करके रब के करीब हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूं और गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दूं और तुम्हारे दर्जात को भी बुलंद कर दूं, पूरे साल का रिस्क भी तुम्हारी किस्मत में लिख दूं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के एहसान है जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर किए। और नबी पाक का ये एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे अमाल, बड़े बड़े अजर सवाब की बिशारतें दी हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने आज का ये अमल बिलखुसूस करना है, हरगज नहीं छोड़िएगा। 17 रमजान मुबारक जुम्मे रात के दिन या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस दौरान आप किसी से बात नहीं करेंगे, बात की तो वजीफा मेरे भाइयों जाया हो जाएगा। अगर आपने किसी से बात कर ली तो इस दौरान आपने ना कुछ दिल में रखना है, ना किसी से बात करनी है, ना मोबाइल को अपने पास रखना है कि आप ये सोचिए मोबाइल अपने पास रख लें कि मोबाइल को साइलेंट पे कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना। आपने इन चीजों को अपने आप से दूर कर देना है। अल्लाह वालों, इसके साथ ही फौरी तौर पर आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने ये कुरानी सूरा मुबारक सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर जिसे दौलत का वजीफा कहा जाता है, सूरतुल कौसर जिसे कामयाबियों का राज कहा जाता है। जब कोई बंदा बेबस हो जाए, लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, आप अपनी उंगली पर सिर्फ और सिर्फ
17 रमजान मुबारक को आपने सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा अमल, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ के आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। वो लोग जो आपको देख कर रास्ता बदल लेते थे, वो यकीन करें आपके पैसों को देख के आपके घर पे आना मजबूर हो जाएंगे और आप लोगों की कामयाबियों का तमाशा देखेंगे, आप लोगों के नाम का दम भरेंगे, आप लोगों के आगे पीछे घूमेंगे। यकीन करें ये ऐसा अमल, ये ऐसा वजीफा मैंने आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। बस आप लोगों ने इसको पूरे यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से, ध्यान से मुलाजा कीजिए। आपने तीसरा और आखिरी वजीफा यानी सूरतुल कौसर को किस तरीके से पढ़ना है, मुलाजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। एक बार हो गई, फिर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 2 बार हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। इस तरह आपने सूरा कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 3 बार पढ़नी है। इंशाअल्लाह 3 बार पढ़ने से सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे उतना ही दूध पाक पढ़ना है जितना आपने पहले पढ़ा था। 1 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 1 ही बार पढ़ेंगे। शुरुआत में 11 बार पढ़ा था तो 11 बार ही पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, ये छोटे से अमाल होते हैं लेकिन इनका जो अजर है, इनका जो स्वाब है, अल्लाह पाक ने जो इन पे बशारतें हम लोगों को दी हैं, जो नवीद हमें सुना दी गई है, वो बहुत ज्यादा है। अल्लाह वालों, कम पढ़ें, सुथरा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। जितना अच्छा पढ़ेंगे अल्लाह पाक आपकी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह पाक आपके अमाल नहीं देखता, आपके कुलूब देखे जाते हैं, आपकी नीयत देखी जाती है। आज जो बंदा जितनी खालिस नीयत के साथ इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके लिए उतनी ही बड़ी आसानियां फरमाएंगे। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपको अच्छा लगा होगा। आपने ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ के देखें, आपकी हर हाजत अल्लाह पाक की जात फौरन पूरी फरमा देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।